All right, perfect. So, welcome back, everyone, and it's so great to see you all here. This is our third and second last session, and as you know, that in the last session we talked about cognitive techniques. We talked about how we can basically reframe those thoughts, how we can challenge those thoughts, and I can see a lot of you have done the homework as well, and they were amazing way of reframing. When you are reframing these thoughts, always remember that you have to be practical. It's not too much about being positive, but more about being practical. वो thought हमने अपने जहन में रखना होता है जो practical लगे, realistic लगे, that you can implement on yourself as well. जब हम क्लाइंट्स को वो बताते हैं, एग्जाम्पल्स बताते हैं ऑफ रीफ्रेमिंग थॉट्स, तो मेक श्योर कि क्लाइंट ये ना डिमांड करे, ये ना बात करे कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कोई ऐसी रिफ्रेमिंग हमने करनी है जो उसके कंट्रोल में हो, जो वो कर भी सके, उसी के हिसाब से हम उसको रिफ्रेम करते हैं। We also talked about how we can challenge those thoughts by asking questions. और ये जो questions होते हैं उनका basic purpose क्या होता है? We try to give them a clear understanding rather than asking direct questions. There are some indirect questions as well that can help them to identify where the problem is coming from. All right, let's see what we will be talking about. Today we will be talking about behavioral techniques and how we can use CBT for specific disorders. हो सकता है कि हमारा 1 घंटे की क्लास में ही शायद ये सारे डिसऑर्डर्स ना हो सके, तो फिर हम उसको लास्ट क्लास में कर देंगे. All right, perfect. Like I also mentioned in the last class, किस तरह से हम behavioral techniques के ऊपर बात करते हैं, we will be testing those beliefs through action now. When we talk about cognitive reconstruction or cognitive reframing, we only mention that how we can reframe those thoughts by different strategies. But when we talk about behavior techniques, we actually test our beliefs through action, through actually doing experiments. Then we will be talking about behavior activation that is most effective with depression or someone with low mood, and we suggest them different techniques. Then we will be talking about exposure therapy and problem solving strategies that basically helps the client to face their fears, or it also helps them how they can basically break through difficult situations. And lastly, ये मैंने कुछ specific disorders के बारे में mention किया हुआ है for the CBT. डिप्रेशन है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, फोबिया है. इसके अलावा भी अगर इफ यू गाइस एवर फील लाइक कि हमें आप उस एक और इसके अलावा भी अगर कोई डिसऑर्डर के बारे में आप चाहते हैं मुझसे पूछना रिगार्डिंग सीबीटी, तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी, हम उसको भी कवर कर लेंगे. बट ये वो डिसऑर्डर्स है जो बहुत कॉमनली नजर आते हैं, इससे मैंने सिर्फ इसी पे लिमिटेड रखा है. All right. So by the end of this session, I hope that you will understand not just the why behind these techniques, कि why do we use these techniques, but also how we can apply these techniques. और जब भी आप कुछ कोई भी थेरेपी के बारे में पढ़ रहे हो, always try to first implement that therapy or that technique on yourself, because that helps you to give a clear understanding. और फिर ही आप किसी और के ऊपर implement कर सकते. और राइट, नार्सिसिस्टिक एंड बॉर्डरलाइन, ठीक है, ये मैं मेंशन कर लेती हूँ. इसी तरह के आप बीच में अगर कोई भी आपको लगे कि हमने इस डिसऑर्डर के बारे में भी आप हमें बता दें, तो हम वो भी डिस्कस कर लेंगे. ऑलराइट, सो द फर्स्ट वे ऑफ बेसिकली द फर्स्ट वे ऑफ सीबीटी जिस पे वर्क किया जाता है, दैट इज हम बिहेवियर एक्सपेरिमेंट्स की बात करेंगे. दे आर सम प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स और टेस्ट that help us to challenge our unhelpful beliefs, unhelpful assumptions, and we put those assumptions into real life as well. ठीक है. अब रियल लाइफ अगर हम एक्सपेरिमेंट्स की बात करें, तो दैट डज नॉट मीन एनी लैब टेस्ट और एनीथिंग. हम कोई ऐसा प्रैक्टिकल नहीं करने लगे हैं. इट जस्ट मीन दैट वी एक्चुअली ट्राई समथिंग आउट इन रियल लाइफ टू सी whether our thoughts or beliefs are actually true or not. तो क्लाइंट्स बहुत सारी बातें करते हैं, फिर हम उनसे पूछते हैं क्या कभी इस तरह का हुआ है रियल लाइफ में, तो वो कहते हैं नहीं ऐसा हुआ तो कुछ भी नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है. देन वी आस्क देम कि हाउ अबाउट वी एक्चुअली ट्राई टू सी कि क्या अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या वाकई ऐसा होगा. वी आस्क देम टू डू दिस एक्सपेरिमेंट्स, जिसमें देयर इज अ 5 प्रोसेस, बड़ा ये स्ट्रक्चर
क्योंकि सीबीटी सारी ही बहुत स्ट्रक्चरल फॉर्म में है, तो ये भी प्रॉपर एक स्ट्रक्चर के साथ किया जाता है। इसमें सबसे पहले वी हैव टू पिक अ बिलीव और एनी सिचुएशन, ठीक है, एनी बिलीव दैट्स होल्डिंग यू बैक, दैट शोज अप maybe in anxiety, maybe in low self-esteem or self-criticism, right? For example, as you can see, if I try something new, I'll mess up, ठीक है, ये उनका एक थॉट है, ठीक है, अगर मैं कुछ नया करूंगा तो आई विल मेस इट अप, ठीक है। अब आपने ये थॉट एक बिलीव्स पकड़ लिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि सेकंड स्टेप ये है, यू हैव टू मेक अ गेस, you have to make a prediction about it, identify what you expect to happen on that belief, ठीक है, क्या होगा उस बिलीफ की वजह से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई ट्राई समथिंग न्यू, आपने उनसे पूछना है, दे विल से आई विल फील एम्बेरेस्ड एंड पीपल विल लाफ एट मी, ये उनकी एक अजम्पशन है कि अगर मैं कुछ न्यू करूंगा तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ गई हमारी वर्स्ट केस सिनेरियो, ठीक है, जो हमने कॉग्निशन में भी पढ़ा है कि वी टॉक अबाउट वर्स्ट केस सिनेरियो कि क्या हो सकता है आपके हिसाब से। अब जैसे उन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी हुई है, यू कैन आल्सो आस्क मल्टीपल ऑप्शंस, अच्छा और इसके अलावा आपको क्या लगता है क्या क्या होगा, फिर आपको पता चल जाता है कि उसकी जो प्रिडिक्शंस हैं, जो अजम्पशंस हैं, वो किस कैटेगरी में आ रही है। यू कैन आल्सो आस्क मोर देन वन थॉट एज वेल, देन यू हैव टू प्लान अ टेस्ट, ठीक है। You actually have to decide on something specific you can do to test your belief. चाहे वो कोई छोटी चीज हो, कुछ safe. Make sure you always start with safe experiments that allows you to test your belief in real life. कोई ऐसी चीज जो मैनेजेबल हो, जो बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग ना लगे, ठीक है, एंड इट शुड ऑलवेज डायरेक्टली रिलेट टू द बिलीफ यू आर टेस्टिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मेक श्योर वो आपने टेस्ट करवाना है जो रिलेटेबल हो, ठीक है। इट कुड बी ट्राइंग अ न्यू हॉबी, इट कुड बी स्पीकिंग अप इन अ ग्रुप, ठीक है, इट कुड बी इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ इन अ स्मॉल मीटिंग, कोई नई चीज आप कर रहे हैं, ठीक है, या कोई आपने क्लास में कोई क्वेश्चन पूछ लिया, छोटी छोटी चीज जो मैनेजेबल हो सके। देन कम्स द एक्सपेरिमेंट, द मेजर पार्ट, you actually do the thing that you planned, and then you see how does you actually feel or what actually happens after that, ठीक है। आपने वो एक्सपेरिमेंट कर लिया, you did something new, then what happened, how did people respond to that, how were you feeling before doing it, during the experiment or after the experiment। ये दो मेन चीजें आपने एक्सपेरिमेंट में देखनी होती हैं कि हाउ डू पीपल रिस्पॉन्ड, ये क्या, what was the reaction of people, secondly how you were feeling before doing this experiment, during the experiment and after the experiment, and then you ask the client to write those observations down, and lastly आउटकम में हमने देखना होता है कि जो हमने पहले बिलीव पकड़ा था और जो अजम्पशंस हमने लगाई थी वो कितनी मैच करी हमारे एक्सपेरिमेंट के साथ, ठीक है। क्या आप जिस चीज का आपको खौफ था क्या वो एक्चुअली में हुआ, क्या रिएक्शन वाकई इतना बुरा था जितना आपने एक्सपेक्ट किया था, और अगर नहीं इस तरह का हुआ तो फिर आपने क्या सीखा अपने बारे में या अपने बिलीफ के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, वो कहेंगे कि मैंने मीटिंग में अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया, कोई भी नहीं इतना हंसा, ना कोई अनॉय हो रहा था, बल्कि लोग तो एक्चुअली में खुश हो रहे थे, तो इट वाज नॉट दैट बैड एज आई वाज थिंकिंग। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ दैट बिलीफ यू कैन एक्चुअली टेल देम कि देखा आपने जो सोचा था वो वैसा नहीं हुआ। तो इसी तरह से डू नॉट जस्ट बिलीव योर थॉट्स, ऑल्सो टेस्ट देम, ठीक है, बिकॉज रियलिटी कभी कभार हमें इस चीज को दिखा देती है कि वी कैन ऑल्सो बी रॉन्ग, ठीक है। और जो बिहेवियर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, इट हेल्प्स, इट ऑल्सो हेल्प्स अस to relearn what's safe, what's possible, and what's true. Any questions so far? Ji, Aisha. I was saying if, for example, we do this entire experiment, like what if there is this one instance where their expectation
actually happens. Like for example, if they think, okay, public speaking, what if I forget what I'm saying? So what if they actually forget in the experiment itself? तब क्या करेंगे हम लोग basically in that case? आयशा आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है, कैन यू प्लीज रिपीट? Can you hear me now? यस, I was saying, कि what if their worst case scenario actually comes true in the experiment? बिल्कुल. अच्छा, अगर उनका वर्स्ट केस सिनेरियो एक्चुअली में ट्रू हो जाता है, देन एज अ थेरेपिस्ट वी हैव टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर हियर. कि अगर आपने सपोज ये सेम कोई एग्जांपल अगर आप दे देंगे तो मैं उस पर ज्यादा आपको क्लियरली एक्सप्लेन करती हूँ. Like they have a fear of public speaking, या even इस meeting में they had a fear कि मैं क्या पता मैं भूल जाऊँ जो मैं बोल रही हूँ, या what if I stutter, ठीक है? And that's their worst case scenario, and it actually happens. So what would we do in that case? अच्छा, इसमें क्या होता है कि उनका जो बिलीफ है कि मैं अगर स्टटर करूंगा तो फिर क्या होगा, हमने उसके ऊपर बात करनी. हो सकता है वो वाकई स्टटर करे, हो सकता है वो भूल भी जाए, लेकिन असल जो उनको खौफ होता है ना, वो होता है कि उसके बाद क्या होगा. The stuttering or the forgetting is not the problem. The outcome of that action is the problem. Just a second. और फॉर एग्जाम्पल इसी सिचुएशन में अगर वो स्टटर उसने किया, फिर मे बी एक दो लोग हंस भी गए, दैट उसका फियर ये होगा ना कि इफ आई स्टटर और इफ आई फॉरगेट देन पीपल विल लाफ एट मी. फिर हमने उनको ये बताना है कि जो लोग आपके ऊपर हंस रहे थे, दोज पीपल या दोज बिहेवियर, दीज आर नॉट इन आवर कंट्रोल. उनका हंसने से हमें क्यों फर्क पड़ रहा है? बिकॉज सेल्फ एस्टीम लो है, अपने ऊपर डाउट है. फिर हम जो उसका सेल्फ डाउट है उसके ऊपर हम काम करना शुरू कर देंगे. आयशा, ये जो बिहेवियर एक्सपेरिमेंट है, इट हेल्प्स अस टू बेसिकली सी द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, और जो उसका फियर अगर वो डेवलप भी हुआ हुआ तो हो सकता है कि वो इसी बेसिस पे हुआ हो कि बहुत दफा मैंने प्रेजेंटेशन दी, मैं स्टटर किया, मेरे पे लोग हंसने लग गए. नाउ आई हैव अ फियर कि मैं कभी भी वो फेस नहीं कर सकता. तो हमने फिर उसका आउटकम देखना होता है, उसका रूट कॉज देखना होता है कि उसको कैसे ठीक किया जाए. और ये वही बात है कि हमने कोशिश ये करनी है कि बिल्कुल लाइट एक्सपेरिमेंट से हमने स्टार्ट करना. डिपेंडिंग है तो कितना, फिर हम उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं, उनको ये शो कराते हैं कि जो भी बिलीव, जो भी जहन में हमारी चीजें आ रही होती है, वो जरूरी नहीं कि सारी ही सच हो. कुछ वो ठीक भी हो सकते हैं, कुछ वो गलत भी हो सकती हैं. बिकॉज मोस्टली जो एंजाइटी के या डिप्रेशन के क्लाइंट्स होते हैं, उनका ये लग रहा होता है कि माई थॉट्स आर फैक्ट्स, whatever I'm thinking, it's true without any evidence or without actually doing it. ठीक है, anyone else, कोई और कोई क्वेश्चन, कोई चीज समझते आई, कोई क्लैरिटी अगर चाहिए तो ऑन दिस. All right, let's move forward then. Perfect. All right, now comes some group example discussion on the same thing, because this is very, ये बड़ा effective होता है और ये बहुत useful होता है. तो I wanted कि हम इसी के ऊपर थोड़ा आगे further बात करें. I'm giving you an example. You have 5 minutes or 4 minutes. Think about it first. Example ये है, if I speak in a meeting, किसी client ने आपको कहा है, everyone will think I'm stupid. Rather than just accepting that thought, we are going to run a behavioral experiment. So आप क्या कहेंगे? You plan to say what you observe and what you reflect. Think about it and then maybe just write on your notes and then speak or chat पे लिख लें. ये इसको थोड़ा सा करें. And if you want any help, ask each other. You can also talk to each other about it and discuss with each other if anyone has any question. But I won't be part of the discussion. आपस में discuss कर सकते हैं.
Whoever is done, they can also share. All right, we have one response from Myra. I plan to share my thoughts calmly in the meeting. Observation में I notice my heart beating faster when it's my turn. I reflect that my thought everyone thinks I'm stupid might be an exaggeration. ठीक है, बिल्कुल सही. First, you plan to share your thoughts calmly. Then you notice that your heartbeat was beating faster when it was your turn. And reflect आपने क्या किया कि everyone thinks that I'm stupid might be an exaggeration because no one knows that your heart is beating faster or you have anxiety या आपको कुछ घबराहट है, ये सिर्फ आपको ही पता होता है. एंड ऐसा लग रहा होता है कि शायद सबको नजर आ रहा है कि मैं तो बहुत घबरा रही हूँ, मुझे palpitations हो रही है, बट नो वन कैन सी दैट जब तक आपके बिहेवियर में वो चीज नजर नहीं आएगी. ऑलराइट, महानूर ने भी बता दिया है. महानूर ने कहा है आई प्लान टू से अबाउट द टॉपिक ऑफ माई इंटरेस्ट. I observed that how others will react and pay attention that I am speaking. I reflect that my fear of speaking overcame or not. ठीक है. और रिफ्लेक्शन आपने कैसे किया? By actually speaking about it. When you start speaking about it, you notice के जो मेरा फियर है वो बेसिकली आपने इसमें ऑब्जर्वेशन में ज्यादातर आपने लिखना होता है कि लोग क्या कह रहे हैं या मैं कैसा फील कर रही हूँ. जो आपकी ऑब्जर्वेशन है ना जिसमें आपने लिखा है हाउ अदर्स विल रिएक्ट, यू हैव टू बेसिकली टेल कैसे रिएक्ट करेंगे. आई गोइंग टू लाफ अबाउट इट, आर दे गोइंग टू से समथिंग अबाउट इट, आपने वो मेंशन करना होता है. ऑलराइट, वानिया का भी आ गया है. देन अदीबा आई विल कम टू यू. Vanya is saying, speak up in a meeting about a topic I'm somewhat familiar with. The reactions of others in the meeting. Do they seem dismissive, critical, or engaged? Do they respond in a way that makes you think they are judging you? अच्छा, अभी और भी वाने आई थिंक लिख रही है. Adiba, yes, you can say now. थैंक यू. अफरा, मैं इसमें कहना चाहूंगी कि समटाइम हमारे ऐसे लाइक होते हैं थिंकिंग पैटर्न और हमारी एंजाइटी लेवल ऐसा होता है जिसमें हमारे फिजिकल सिम्टम्स जो होते हैं वो शो हो रहे होते हैं. फॉर इंस्टेंस, इफ आई स्पीक इन अ मीटिंग और इन ए ग्रुप सेशन और एनी अदर इंटरव्यू कह लें, तो वहां पे लो समटाइम आपको पसीना आ रहा होता है. ठीक है. अब जब पसीना आ रहा होता है तो आप उस स्वेटिंग को रोक नहीं सकते. फॉर इंस्टेंस, अगर आपकी आवाज लटखड़ा रही है आप उसको नहीं रोक सकते. आपकी बॉडी है वो शिवरिंग कर रही है, आप उसको नहीं रोक सकते. तो समटाइम आई मल्टीपल एक्सपेरिमेंट विद माय क्लाइंट्स एंड आई ऑल्सो एक्सपेरिमेंट कि जब आप चाहें अगर थोड़ा सा डीप ब्रीथ लें और अगर आप समझते हैं कि मेरे फिजिकल सिम्टम ऐसे हैं जो कि शो होते हैं
उनको देखा जा सकता है। तो आप थोड़ा सा अगर सामने वालों से एक कंफर्ट जोन में होके अगर आप ये कह दे कि दिस इज माय एंजाइटी एंड लाइक ये हर दफा होता है मेरे साथ, या फिर मैं इसको इस बड़े लाइटली मूड में अगर आपको कह दो और उसके बाद आप अपने स्टार्टअप लें, तो मेरे ख्याल में वो थोड़ी देर बाद डिसअपियर होना शुरू हो जाती है और फिर आप खुद भी लाइट फील करना शुरू कर दो। बिल्कुल सही, ठीक है। वही बात है, एज लॉन्ग एज यू कैन एक्सेप्ट योर, देखिए एंजाइटी एक ऐसी चीज है, आई पर्सनली बिलीव, जिसके सिम्टम्स हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप ऐसे कहो कि हमें एंजाइटी होती ही नहीं है, कभी भी नहीं होती। नो मैटर हाउ कॉन्फिडेंट और परफेक्ट यू आर, आई थिंक ये कुछ इस तरह के सिम्टम्स होते हैं जो नेचुरल हमारे साथ होते हैं। बट एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू एक्सेप्ट योर एंजाइटी, accept the issue whatever it is and accept the symptoms, I think you can deal with it. अगर आप उसको खुद डील कर सकते हैं तो फिर अगले बंदा को कोई भी नहीं, the other person has no right to make you feel down or criticize you on the basis of those symptoms. So it's very important that हम सबसे पहले इस चीज को accept करें and only then we can learn how to deal with it or cope with it. वो हमने खुद करना होता है। एग्जैक्टली अगर हम एंजाइटी के जो सिम्टम्स हैं उसको हम उससे अवेयर हो और उसको आइडेंटिफाई करें। बिल्कुल सर। All right, perfect. Thank you. Khansa ने कहा है, I plan to share my thoughts and ideas in the meeting. I will observe how they react to my ideas and what they will say about it. अच्छा, अगेन खानसा यहाँ पे you have to mention कि एक्चुअली में क्या रिएक्शन देंगे और वो क्या बोलेंगे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में आपको थोड़ा सा आपके जो assumptions हैं कि they will react to my ideas, how, क्या रिएक्शन होगा उनका, what they will say about you, आपने वो भी इसमें ऑब्जर्वेशन में लिखना होता है। I reflect that whether right or wrong, I had the chance to speak my thoughts with them. ठीक है, all right, ठीक है, I can see सबने ही almost answers दिए हैं, perfect. So you got the idea now. इसको किस तरह से हमने करना है, excellent. ठीक है, perfect. अच्छा, लास्ट में पढ़ लेती हूँ, आयशा का पढ़ लेते हैं। I plan to ask a question just now. I observed that, excellent. Aisha is actually giving the example that just happened. Very good. I planned to ask a question just now. I observed that you were responsive and you understood my question. I reflected that my fear of it being a stupid question was just in my head. Exactly. बड़ा अच्छा आपने इसको कवर वो किया, एक्सप्लेन किया कि अगर आपको Aisha wanted to ask me a question, लेकिन क्वेश्चन से पहले ही आयशा के जहन में ये ख्याल आया कि if I ask this question I might look stupid or I might feel stupid. इसको टेस्ट करने के लिए मैंने एक्चुअली में सवाल पूछ लिया, और जब मैंने सवाल पूछा तो अगले बंदे ने बड़े अच्छे से उसको समझा और जवाब दे दिया, और किसी इस पूरे बिहेवियर एक्सपेरिमेंट में ये कहीं नहीं बात हुई या फील हुआ कि मैं तो स्टूपिड हूँ या मेरा सवाल इलॉजिकल, ठीक है। इसी तरह से यू कैन ऑलवेज टेस्ट द बिलीव एंड चैलेंज द बिलीव थ्रू एक्शन, नॉट जस्ट थिंकिंग, ठीक है। सिर्फ थिंकिंग की हद तक नहीं, आप एक्चुअली में इसको चैलेंज भी कर सकते हैं। ऑलराइट, आई एम नोटिसिंग डाउन ऑल द आंसर्स, ठीक है। सबका ही सही आंसर है, बस रिफ्लेक्शन ऑब्जर्वेशन में जब अगर हम बात करेंगे तो यू हैव टू बी अ लिटिल बिट मोर थॉरो, थोड़ा सा उसको इन डेप्थ में आपने बताना है कि क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। इट्स नॉट एन एक्टिविटी, अगला हमारा जो है डिस्कशन, दैट इज बिहेवियर एक्शन, ठीक है। This is also one of the way that CBT helps when it comes to challenging your beliefs through your behaviors, ठीक है। It's a very powerful therapeutic technique that can help in reducing the symptoms of depression. Mostly depression के ऊपर use होता है, and we encourage those clients जिनको depression होता है to actually start doing those meaningful things, those rewarding things that actually makes you feel good. कोई भी डिप्रेस्ड क्लाइंट होगा, आप उससे पूछें कि आपकी क्या रूटीन है, तो वो सारी वही रूटीन बताएगा जो उसके डिप्रेशन को बढ़ा रही है। कोई डिप्रेस इंसान ये नहीं कहेगा कि मैं सुबह उठता हूँ, बड़ा फ्रेश होता हूँ, फिर मैं मॉर्निंग वॉक जाता हूँ, फिर मैं मूवी देखता हूँ, फिर मैं घर आता हूँ, व्हाटएवर, ठीक है। ये रूटीन नहीं होती। वो ये कहेंगे कि हम तो सारी रात में जागता हूँ, सारा दिन में सोता हूँ, किसी से बात नहीं करता, किसी से बात करने का दिल नहीं करता, कुछ खाता पीता नहीं। ये मोस्टली उनकी रूटीन होती है, एंड दैट इनएक्टिविटी और दैट
इन सोशलाइजेशन जिनकी खत्म हो जाती है बिल्कुल, दैट एक्चुअली उनके पुश करते हैं टुवर्ड्स मोर डिप्रेशन, वो डिप्रेशन के सिम्टम्स को और इंटेंसिफाई करते हैं। जो बिहेवियर एक्टिवेशन टेक्निक है दैट एक्चुअली हेल्प्स अस टू ब्रेक दिस साइकिल। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है बिहेवियर एक्टिवेशन का कि वी हैव टू ब्रेक द साइकिल। जो अवॉइडेंस हम कर रहे हैं, किसी से बात नहीं करनी, खाना नहीं खाना, कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई हॉबी नहीं है, कोई ऐसी एक्टिविटी है ही नहीं जो हमारा डोपामिन रिलीज करे, ये जो अवॉइडेंस का साइकिल है इसको सबसे पहले ब्रेक करना होता है। गोल इज टू ब्रिंग बैक दोज एक्टिविटीज इन योर लाइफ दैट गिव अ सेंस ऑफ प्लेजर, अचीवमेंट और एनीथिंग दैट इज मीनिंगफुल टू यू। और ये जो टेक्निक्स होती हैं बिहेवियर एक्टिवेशन की, ये भी बहुत वेरी माइनर, वेरी स्मॉल, वेरी क्विक, बट वो ये भी नहीं कर रहे होते। ठीक है, आई कम टू द कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है। ठीक है, जो एक्टिविटी स्केड्यूलिंग है उसमें बेसिकली यही होता है कि आप उनका पहले तो आपने उनसे पूरा स्केड्यूल अपना करवाना होता है। ठीक है, उनसे पूछना है कि आपकी क्या रूटीन है, आप कितने बजे उठते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं, पता लग गया। अब एक्टिविटी स्केड्यूलिंग में वी आर गोइंग टू गिव देम अ न्यू स्केड्यूल, वी आर गोइंग टू प्लान एक्टिविटीज अहेड ऑफ टाइम। उनको पहले से बता दीजिएगा कि अच्छा, मैं आपकी जो एक्टिविटी है उसमें मैंने नोट किया है कि 2 बजे से लेके 4 बजे तक आप सिर्फ फोन यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, और इस 2 घंटे में आपकी और कोई एक्टिविटी नहीं है, तो एक काम करते हैं कि आप 2 से 3 अपना फोन यूज कर लें और 3 से 4 में ये वाली एक्टिविटी डाल रही हूँ। क्या हो सकती है कि आपने अपने घर वालों से इंटरेक्शन करनी है, आपने शावर लेना है, आपने अपना रूम नीट करना है, आपने किसी से कॉल पे बात करनी है, किसी को कोई मैसेज करना है, कोई चीज पढ़नी है, छोटी छोटी आपने एक्टिविटीज डालनी है। और आप उनको पहले से बता देते हैं कि कल से आपकी ये रूटीन होगी, फिर आपने इसको करना है। एंड जब आप उसको करेंगे तो आपने मुझे बताना है कि हाँ, आपने मुझे कहा था कि 3 से 4 फोन नहीं यूज करना, तो मैंने इस टाइम पे फोन नहीं यूज किया, मैंने ये एक्टिविटीज की। And then we have to actually reinforce those behaviors. We have to appreciate them कि हाँ आपने ये किया, तो आपको कैसा महसूस हो, आपके ब्रेन ने आपको क्या उस टाइम पे सिग्नल दिया, एंड दे एक्चुअली फील गुड। शुरू में शायद उनको लगे कि नहीं दिल कर रहा था, बहुत मुश्किल से मैंने किया, बड़ा मुझे अजीब लगा, लेकिन मैंने फिर भी किया क्योंकि आपने मुझे कहा था, आपके कहने पे मैंने किया। तो फिर हम उनको और रीइंफोर्स करते हैं कि थैंक यू सो मच, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने किया, अब आप नेक्स्ट टाइम भी इसको आपने और करना है, इसको दोबारा से करना है। ठीक है, इट टेक्स टाइम बट इट कैन हैपन, एंड हमेशा छोटी छोटी एक्टिविटी से हमने स्टार्ट करना होगा। अच्छा, अभी जो स्टेप्स की अगर हम बात करें तो दरअसल ये जितनी भी चीजें अभी मैंने आपको बताई हैं ये उसी के ही बारे में, बट वही बात है, जैसे मैंने कहा सीपीटी बहुत स्ट्रक्चर्ड होती है, तो इसमें भी इन्होंने स्टेप्स दिए हैं। अच्छा, पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहले आपने उनसे पूछना है कि आपकी वैल्यूज क्या हैं, आपके इंटरेस्ट क्या हैं। या डिप्रेशन आपको 2015 में स्टार्ट हुआ, तो उससे पहले की आपकी क्या रूटीन होती है, वो आपको बताएंगे पहले मुझे लिखने का शौक था, पहले मुझे म्यूजिक का बहुत शौक था, पहले मुझे कुकिंग का, बेकिंग का बहुत शौक था। आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी कि उनके क्या वैल्यूज थे, उनके क्या इंटरेस्ट थे। ठीक है, कौन कौन सी चीजें थी जो उनको अच्छी लगती थी पहले करना, वही चीजें हमने दरअसल दोबारा से उनकी एक्टिविटी में ऐड ऑन करनी थी। फिर हमने उनका देखना होता है कि उनकी जो एक्टिविटी स्केड्यूलिंग से पहले जो उन्होंने हमें रूटीन बताई है, उस रूटीन में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो उनका मूड को अफेक्ट कर रही। ठीक है, कौन सी चीज है जिसके बाद वो ज्यादा डिप्रेस फील करते हैं। वो कहते हैं कि मैं जब फलां चीज देखता हूँ तो मैं और अपसेट हो जाता हूँ, या जब भी मैं अपने फादर से बात करता हूँ तो वो मेरे से यही सवाल पूछते हैं कि तुमने जिंदगी में क्या करना है, तो ये वाली चीज मेरे लिए बहुत अपसेटिंग है। हम क्या कर रहे हैं, दरअसल वी आर ट्राइंग टू फाइंड द ट्रिगर्स। जब हमें उनकी रूटीन पता चलती है, हमें उनके ट्रिगर्स का अंदाजा हो जाता है। ठीक है, और अब जो हमने उनको रूटीन बताई है तब उनमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। दरअसल हमने एवरीथिंग वी हैव ट्रैक द एंटायर बिहेवियर बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, देन कम्स द ग्रेजुअल एंगेजमेंट। ग्रेजुअल एंगेजमेंट में क्या होता है कि वही एक्टिविटीज आपने वापस उनकी लाइफ में डालनी होती है, 1 स्टेप एट अ टाइम, छोटी छोटी करके आपने डालनी होती है। कि आज आप 5 मिनट के लिए म्यूजिक, अगर आपको म्यूजिक पसंद है तो आप 5 मिनट के लिए म्यूजिक सुनो। ठीक है,
अगर आपको किसी से बात करना पसंद है, आपको ड्राइंग पसंद है, आर्ट के बारे में यू हैव अ हॉबी, तो आप 10 मिनट 15 मिनट के लिए ड्राइंग करें, ठीक है। एंड देन फाइनली यू आस्क देम ना कि कैसा आपको महसूस हुआ, कैसा लगा, क्या सीखा, क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। इन शॉर्ट, behavioral activation is all about doing it, taking the action first and the mood later. हमने इनको बताना होता है कि आपने वेट नहीं करना कि जब दिल करेगा तो करूंगा, आपने इनको बताना होता है कि आप करो, दिल कर रहा है या नहीं कर रहा, और फिर उसके बाद देखो कैसा महसूस होगा, ठीक है। आई थिंक एनी क्वेश्चन दैट यू गाइस हैव। ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये भी यही है, इनएक्टिविटी है दैट लीड्स टू डिप्रेशन, डिप्रेशन लीड्स टू इनएक्टिविटी, और ये जो इंटायर साइकिल है ऑफ अवॉइडेंस का, ये बिहेवियर एक्टिवेशन इज एफर्टफुल टू बिगिन विथ, डू मोर ऑफ व्हाट मैटर्स टू यू, देन बिकम्स सेल्फ रीइंफोर्सिंग एंड फील बेटर अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। ये इंटायर बिहेवियर एक्टिवेशन का साइकिल। एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग जो समझ नहीं आई? I'm trying to keep it very simple, very clear. कोई मैं घुमा फिरा के बात नहीं करी, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। इसको जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आपको पहले तो खुद पे करना है, जैसे मैंने कहा पहले खुद पे करना है ये सारी एक्टिविटीज, और फिर ही आप किसी और क्लाइंट के ऊपर ये कर सकते हैं। और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा फिर ही ये प्रैक्टिकल किया जाएगा कि हम, क्योंकि इट्स इम्पोर्टेंट कि क्लाइंट आपको कहेगा आप ये क्यों करवा रही हैं, पहला सवाल है उनका इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या होगा, ये नहीं मैंने करना, क्योंकि फिर आपने उनको समझाना होता है कि इसके पीछे यही रीजन है। डिप्रेशन में आप कुछ नहीं कर रहे, इन एक्टिविटी उससे क्या हो रहा है, ये फिर क्या होगा, क्योंकि क्लाइंट्स डू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि ये क्या चीज है, ये मैंने नहीं करनी है। तो जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप उसको नहीं समझा पाएंगे। तो ये कभी भी नहीं कहना कि नहीं बस आपने कह रही ना आपको, आप बस ये करके देखें, दे विल नॉट डू इट। they need to know कि इसके पीछे क्या रीजन है, फिर ही वो करते हैं, एंड दे एक्चुअली डू इट। ये बड़ा सक्सेसफुल है, जैसे CBT इज एविडेंस बेस्ड, इसके ऊपर बहुत काम हुआ है। मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि ये चीजें बहुत यूजफुल होती है, ये बहुत काम करती हैं क्लाइंट्स के ऊपर। अच्छा ठीक है, नाउ शेल वी मूव फॉरवर्ड, आगे चलें। थम्स अप। All right, perfect. Now I'll tell you about the activities की जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब behavioral activation में they have divided these activities into 3 different parts, ठीक है। और इससे फायदा ये होता है कि आपको एक्टिविटीज असाइन करने में बड़ी आसानी हो जाती है। The first one is pleasure based activities. Pleasure based activities वो एक्टिविटीज होती हैं that brings fun in their life, that brings joy in their life, जिनको करके उनको खुशी मिलती है, जैसे कोई मूवी देख ली, कोई म्यूजिक सुन लिया, वॉक पे चले गए, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, मेकअप का शौक है लड़कियों को, किसी को मेकअप कर लिया। मेकअप का भी बड़ा ये एक अच्छा, बहुत इफेक्टिव, बहुत, मैं तो इलाज में करवाती हूँ गर्ल्स के साथ कि मैं उनको कहती हूँ कि आपने जो है ना एक मतलब कोई टाइम निकाल के, कोई घंटा निकाल के प्रॉपर आपने अपना मेकअप करना, ठीक है। और वो कहते हैं नहीं हमारा तो दिल ही नहीं करता, बट मैं आई डू एड दिस एक्टिविटी कि चले आज नहीं आपसे हुआ, कल आपने जरूर उसको ट्राई करके फिर मुझे आपने बताना है कि आपने मेकअप किया कि नहीं किया, एंड दैट एक्चुअली हेल्प्स देम टू फील गुड अबाउट देमसेल्व्स, ठीक है। देन कम्स द मास्टरी बेस्ड एक्टिविटीज, ठीक है। दैट इज वो एक्टिविटीज जिनको, जहाँ पे उनको अकॉम्प्लिशमेंट फील होती है। ये बेसिकली स्किल बिल्डिंग एक्टिविटीज होती है, कोई नई हॉबी सीखने को हम उनको कहते हैं। कुकिंग करवा ली, कुकिंग दैट आल्सो मेक्स देम फील गुड कि हमने कुछ अकॉम्प्लिश किया, या उनसे बेकिंग वगैरह की कोई एक्टिविटी दे दी। अच्छा, यहाँ पे और भी बड़ी सारी मजे की एक्टिविटीज हैं। ऑर्गेनाइज एन एरिया ऑफ योर रूम, सॉल्व अ पजल, बिल्ड समथिंग, प्रैक्टिस अ स्पोर्ट, एनीथिंग, ठीक है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी दैट मेक्स यू फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ। अच्छा, देन वी हैव वैल्यू बेस्ड एक्टिविटीज। ये आपने उनसे पहले पूछना है कि उनको क्या हॉबीज हैं, क्या फन उनको लगता है, कौन सी चीजें हैं दैट मेक्स देम फील प्राउड ऑफ देम, कौन सी चीजें हैं जो उनके लिए
बहुत ज़्यादा वैल्यू है, कनेक्ट करने में हेल्प करती हैं? क्या एक्टिविटीज़ हैं जो उनके पर्सनल वैल्यूज़ के साथ मीट करे? कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जिसमें वो काम कर रहे थे लेकिन उन्होंने छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दी, ठीक है, जॉब कर रहे थे, जॉब छोड़ दी, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे वॉलंटियरिंग की बात है कि आप किसी और की हेल्प कर लें, ठीक है, किसी फ्रेंड को कॉल कर लें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली मेंबर के साथ हैंग आउट कर लें, छोटी छोटी एक्टिविटीज आपने डालनी होती हैं ताकि उनका जो इमोशनल वेलबींग है दैट शुड बी सपोर्टेड बाय ऑल द एलिमेंट्स। और हमने उनको बताना होता है और ये खुद भी देखना होता है कि इट्स ऑल अबाउट प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन, ठीक है। हमने उनको ये नहीं बताना कि यू हैव टू कुक द बेस्ट फूड, यू हैव टू डू द बेस्ट मेकअप, यू हैव टू लर्न द बेस्ट म्यूजिक। हमने उनको ये बताना होता है कि यू हैव टू अप्रिशिएट योरसेल्फ फॉर इवन डूइंग दीज थिंग्स, क्योंकि हमने उनका मूड इम्प्रूव करना है, उनके सिम्टम्स को रिड्यूस करना है, उनको अच्छा फील करवाना है अपने बारे में, ठीक है। आई वुड लाइक टू आस्क यू गाइज नाउ, आप लोगों के हिसाब से अपने रूटीन को थोड़ा सा देखें और मुझसे शेयर करें कि ऐसी कोई एक्टिविटी, एक एक्टिविटी या दो एक्टिविटी जो आपको बहुत एनर्जाइज करती है बट यू हैव बीन अवॉइडिंग ड्यू टू एनी पर्सनल रीजन, टाइम नहीं मिलता, कुछ भी, एनी, इट कुड बी एनी रीजन, एनी एक्टिविटी यू वुड लाइक टू शेयर जिनको आपको शौक हो लेकिन आपने बड़े अरसे से वो की ना हो। You can unmute yourself and then just share with us. All right. Baking, book reading, reading novels, time नहीं अब मिलता. कैसे painting, skating, going out with friends. इतनी मजे मजे की एक्टिविटीज हैं, आप लोगों को ये भी एक्टिविटीज अब कोशिश करनी चाहिए कि महीने में एक दफा पेंटिंग कर ली, कुकिंग कर ली, हफ्ते में एक दफा अपने लिए हमेशा टाइम निकालना चाहिए. प्लेइंग बैडमिंटन एंड स्विमिंग, हैंड एम्ब्रॉयडरी, वेरी गुड मेरी. लाइक अब ये वो एक्टिविटीज हैं जो आप लोगों को चाहिए, आप लोग अपने साथ ये एक्टिविटी स्केड्यूलिंग करें, अपनी रूटीन बनाएं और देखिए कि कहाँ पे वी कैन एक्चुअली एडजस्ट दीज थिंग्स. आई हैव टू मेनी हॉबीज बट आई ऑलवेज एंड अप डूइंग नथिंग. क्रोचेट, आपने अपने लिए टाइम निकालना है अपनी हॉबीज के लिए. जैसे मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है बट सिंस आई हैव अ टॉडलर विद मी तो मैं ट्रैवलिंग बहुत मेरा कम हो गया. मुझे बस होता है कि कोई मुझे कहीं ले जाए, मुझे कोई मौका मिले तो मैं कोई मौका ना छोड़ूं, बट बिकॉज साथ छोटा बेबी साथ है तो ट्रैवलिंग करना मुश्किल होता है. बट आई रियली मिस एंड आई बिलीव कि वो चीज मुझे ऐड ऑन करने की जरूरत है. तो इसी तरह से वी कैन ऑलवेज सी कि कौन कौन सी एक्टिविटीज है दैट वी लाइक टू डू एंड व्हाई वी आर नॉट डूइंग, ठीक है, देन वी ऐड ऑन टू दैट एक्टिविटी. ऑलराइट, परफेक्ट. Perfect. Thank you everyone for sharing that. Homemade remedies for skin and hair care. अक्सर ये तो आपको करना चाहिए, इससे आपको भी, आपके साथ साथ और भी जो लोग हैं उनको भी बड़ा फायदा हो सकता है. इस एक्टिविटी, इस हॉबी भी हो सकती है, आपके इंटरेस्ट भी जिस चीज में है आपको. ठीक है जी, परफेक्ट. लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ. अच्छा जी, नाउ व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट? I think we are going to talk about exposure techniques. Yes. I think first class में मुझसे किसी ने पूछा था कि exposure therapy कैसे कराते हैं या panic disorder के साथ कौन कौन सी techniques हैं जो हम कर सकते हैं. So like I said that I will be talking about that as well. 8 seconds. I need details here, please. All right. अच्छा, अब एक्सपोजर थेरेपी क्या है? दैट इज वेरी पावरफुल, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन साइकोलॉजी, जिसमें बेसिकली हम ये फोकस करते हैं कि जो भी हमारे फियर्स हैं, जो भी हमारी एंजाइटीज हैं, जिस चीज़ की वजह से हमें घबराहट होती है, वी एक्चुअली गेट एक्सपोज टू दोज थिंग्स बट इन अ वेरी सेफ एंड अ वेरी कंट्रोल्ड वे. इसके लिए मेक श्योर दैट यू आर practical enough, you have done a lot of
प्रैक्टिकल टेक्निक्स ऑन योर सेल्फ, या फिर किसी को देखा है करते हुए, सीखा है, फिर ही हम ये करवाते हैं। ये हर साइकोलॉजिस्ट ये नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि इसमें उनको एक्सपोज किया जाता है टू देयर फियर्स, ठीक है, और उनको ये सिखाया जाता है कि इन अ सेफ वे, इन अ कंट्रोल वे, यू कैन एक्चुअली लर्न टू हाउ टू बेसिकली कोप अप विद इट, ठीक है। आई एम श्योर आप लोगों ने काफी सुना होगा ये कॉन्सेप्ट, ये डायलॉग, कि फील द फियर एंड डू इट एनीवे, ठीक है, डर के आगे जीत है बेसिकली। तो ये वही चीज है कि आपने उनको ये चीज सिखानी होती है कि जब तक आप अपने फियर्स को फेस नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। एंड दैट्स द होल कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोजर थेरेपी। ये एंजाइटी और फोबियाज के लिए सबसे ज्यादा यूज होती है। अच्छा, अब क्योंकि वी हैव टू मेजर टाइप्स ऑफ टेक्निक्स, ग्रेजुअल एक्सपोजर एंड फ्लडिंग। अच्छा, उससे पहले इट्स इम्पोर्टेंट टू नो कि जो भी हमारी एंजाइटी होती है या जो फोबियाज होते हैं, दे बेसिकली लिव ऑन अवॉइडेंस, ठीक है, उनकी दे थ्राइव ऑन अवॉइडेंस, क्योंकि हम जिस चीज की हमें एंजाइटी है, जिस चीज का हमें खौफ होता है, वी स्टार्ट अवॉइडिंग दैट थिंग, जिसकी वजह से हमारी एंजाइटी सिर्फ बढ़ती है। और आप ये किसी से भी, अपने किसी भी क्लाइंट से पूछ लें कि आपको एंजाइटी कब से है, और जब से एंजाइटी हुई है तब से आपने कितनी दफा इस चीज को फेस किया है, तो दे विल से कि अब तो मैंने छोड़ दिया है, मैं तो अब अगर मुझे क्राउड में एंजाइटी है तो मैं तो क्राउड प्लेसेस में जाता ही नहीं हूँ, मुझे अगर पब्लिक स्पीकिंग एंजाइटी है मैंने तो छोड़ ही दिया, मैं बिल्कुल भी नहीं पब्लिक स्पीकिंग करता। तो अब इसका मतलब है कि उनकी एंजाइटी शायद शुरू में इट वुड बी ऑन द लेवल ऑफ 2 out of 10, बट अब वो जाके 9 या 10 out of 10 हो गई, ठीक है। तो एक्सपोजर थेरेपी इसी चीज के ऊपर बात करती है कि जो चीज हमें डराती है, वही चीज ग्रेजुअली उस चीज के ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो ग्रेजुअल एक्सपोजर ऑफ फ्लडिंग के बारे में हम बात कर रहे थे। ग्रेजुअल एक्सपोजर बेसिकली क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होता है, फ्लडिंग से ज्यादा ग्रेजुअल एक्सपोजर को यूज किया जाता है, जिसमें हम वी फेस द फियर स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, प्रॉपर इसमें एक लैडर हम बनवाते हैं उनसे, और ये स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। सबसे पहले वी आस्क देम कि आपको किस चीज का फियर है, ठीक है। सपोज हम एक एग्जांपल रख लेते हैं कि हमें किसी जानवर का फियर है, डॉग का फियर है, स्नेक का फियर, बिल्लियों का भी बहुत ज्यादा कॉमन होते थे। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव फोबियाज ऑफ कैट्स, वो कैट्स को लेके बड़ा डरते हैं। अच्छा, बिफोर दैट डू वी हैव एनीवन विद अस जिसको किसी चीज का एक्चुअली में फोबिया या फियर हो? कोई है हमारे पास इस वक्त? एनीवन? किसी चीज का आप लोगों को फियर, फोबिया? फोबिया तो आई नो इट्स अ बिग थिंग, बट फियर भी अगर है तो। जी अदीबा। I have a lot fears of insects. इंसेक्ट्स का फियर है? Yes. हाँ ठीक है। कॉकरोचेस, कॉकरोच का मुझे भी बहुत ज्यादा है ऐसे। अरे कॉकरोचेस, सोच अब मुझे जेहन में आ रहा है तो मुझे कुछ हो रहा है। कैट्स ठीक है, क्लोज स्पेसेस ठीक है, फियर ऑफ हाइट, स्नेक्स। चलो मारिया, फिर अभी है ना हम स्नेक्स के ऊपर ही काम कर लेते हैं, आपकी भी शायद साथ ही एक्सपोजर थेरेपी हो जाएगी। जी मारिया ने अपना कैमरा ऑफ किया है। मारिया अपना कैमरा जरा ऑन कर ले, फिर हम आपके साथ एक्सपोजर टेक्निक करेंगे, ताकि हम मारिया को देखते भी रहे, पता लगे मारिया भाग गई हो या आप तो मारिया की थेरेपी कर रही हो, मारिया कैमरे के पीछे बैठी हुई नहीं। मारिया ने कहा नहीं मैंने नहीं करनी। चले ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। अभी जस्ट स्नेक्स की वैसे बात कर लेते हैं। स्नेक्स का तो किसी को नहीं है ना, सिर्फ मारिया को ही है। चले मारिया, हम आप ही की पे थेरेपी करने लगे। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि वी लोग, हम उसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ग्रेजुअली करते हैं। इसमें सबसे पहले वी आस्क द क्लाइंट ऑन पर्पस, हम उनसे कहते हैं कि आई वांट यू टू थिंक अबाउट इट, उस चीज के बारे में सोचें, ठीक है। पहले वो सोचना स्टार्ट करते हैं। उधर आर यू सेइंग समथिंग? आपका माइक मेरे ख्याल से अनम्यूट है। मेरी गलती से, आई एम सॉरी, जी गलती से अनम्यूट हुआ, आई एम सॉरी। अच्छा ठीक है, कोई बात। ऑलराइट, सो सबसे पहले वी आस्क देम टू थिंक अबाउट इट, ठीक है। एंड देन वी आस्क देम कि हम नाम लेते हैं, सांप का तुम्हें खौफ है, सांप से तुम डरती हो, अच्छा ठीक है।
Then we ask the client to look at the picture of it. हम उनको pictures दिखाते हैं, different pictures only, maybe on the screen or maybe on the paper. That also depends. अभी depend करता है कि client की जो level of fear है basically वो कितना है. ये सब चीजें उस पर depend करती हैं. ठीक है. And then we ask them कि आप उस picture को अपने हाथ में पकड़ लें. कैमरे में है, फोन में है, फोन पे हाथ में पकड़ लें. ठीक है. और ये ग्रेजुअली होता है. ग्रेजुअली से मुराद है कि आज के दिन हम सिर्फ आपने उसके बारे में सोचना है बस. फिर अगले दिन या 2 दिन बाद हम इसको करेंगे. ऐसे भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ एंजाइटी, या आप उसको टाइम नहीं कर सकते कि आपने सोचना है, फिर 15 मिनट उसको हम रिलैक्स करवाएंगे, फिर दोबारा से उसके नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे. दैट इंटायरली डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ फियर दैट क्लाइंट है. ठीक है. एंड देन पिक्चर्स देख ली. ऑब्जर्व अ स्नेक इन अ ग्लास टैंक. पिक्चर्स के बाद उसको हम ग्लास टैंक में बंद बॉक्स में रख के ऑब्जर्व करवाते हैं. एंड देन वी आस्क देम, अच्छा अब आपका थोड़ा लेवल ऑफ फियर कम हो गया. अच्छा, ये सारी जो भी एक्सपोजर टेक्निक होती है, वी हैव टू मेक श्योर कि आप हर स्टेप के बाद रिलैक्सेशन टेक्निक करवाएं, उनसे डीप ब्रीथ करवाएं, उनका हाथ पकड़ें, उनके साथ बैठें. ठीक है. हाँ जी, बिल्कुल. ग्रेजुअल एक्सपोजर को सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन भी कहते हैं. दैट्स द सेम थिंग. दोनों एक ही चीज है. ठीक है. एंड देन यू आस्क द क्लाइंट कि अब आपने सिर्फ स्नेक को हाथ लगाना है. और आई नो मारिया को, मेरे ख्याल से मारिया जो है ना, सिर्फ मेरे कहने पे ही मारिया डर गई होगी कि क्या मुझसे, क्या ये क्यों कह रही है ये सारी चीजें. आपने फिर उनको I'm surprised that you had that exact photo as well. Snakes हाँ जी. की. I'm जी? surprised कि आपने exact like यही वाला photo use किया था I first. know. शायद तो अभी किसी को नहीं होगा, लेकिन मैंने वही कहा सिर्फ मारिया हमारे पास है, अब हम मारिया की भी करेंगे. अच्छा, वैसे मारिया, I would like to know how did it start? Actually छोटे में भी मुझे insects और snakes का थोड़ा सा fear था, and then क्योंकि कुछ साल मैं दुबई में भी रही थी, तो वहाँ एक पार्क है जहाँ usually snakes नजर आते हैं. तो पहले मुझे इतना ज्यादा डर नहीं था, लेकिन फिर जब वो थोड़ा नजदीक से जब देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि it's like a really big worm और like बस मुझे अच्छा नहीं लगा. फिर जब मैं सोचती हूँ ना तो मुझे लगता है कि बस आके wrap itself around me, और फिर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद. Where are you from? I'm from Pakistan, लेकिन पाकिस्तान में देखा था स्नेक? जी स्नेक मैंने कहा पाकिस्तान में देखा था. नहीं, मैंने दुबई में देखा था. हाँ, वही बात कुछ है साल जब मैं वहीं रही थी ना, तो वहाँ मैंने देखा. सही सही, वही मैंने कहा, मैं इसलिए मैंने स्नेक का रखा था कि शायद स्नेक का कम ही इनकाउंटर हुआ होगा, बट सिंस आपने बताया दुबई में देखा था, तो वहाँ के तो होते भी इतने खौफनाक, और वैसे ही बंदा डर जाए बिल्कुल. तो वहीं से शुरू हुए. हाँ. अच्छा, व्हाट इफ फियर इज रिलेटेड टू सम फॉर्म ऑफ ट्रॉमा? अच्छा, अगर आपका फियर ट्रॉमा से रिलेटेड है तो फिर वो पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस की तरफ चला जाता है. मैं उधर भी आती हूँ. हाँ, ठीक है. अगर आपका फियर किसी ट्रॉमा से रिलेटेड है तो उसमें हम एक्सपोजर टेक्निक की, उसमें हम फिर PTSD की तरफ चला जाता है. वो उसकी डिफरेंट टेक्निक्स है. आई कम टू दैट. अच्छा जी, ठीक है. मारिया, आप कान बंद कर लें थोड़ी देर के लिए. आप इसका फायदा उठा के अपनी थोड़ी सी थेरेपी कर लें. इसमें बेसिकली आपने ग्रेजुअली उसको करवाना होता है, और हर स्टेप के बाद वी हैव टू गिव द रिलैक्सेशन टेक्निक एज वेल. ठीक है. उनको बताना होता है कि इट्स ओके, यू आर इन कंट्रोल, यू आर सेफ, द स्नेक इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, एवरीथिंग इज इन योर कंट्रोल, यू कैन फेस द फियर. और वो जो फियर की जो बात होती है ना, वो एक्चुअली में जब तक आप उसको फेस नहीं करते, इट डजंट गो अवे. ठीक है. एंड यू once you face that, you actually feel like कि हाँ ठीक है, पहले मुझे डर लगता था, लेकिन अब थोड़ा सा मेरा डर कम हुआ है. अच्छा, वो जो थोड़ा सा डर कम हुआ है, अगर ये भी क्लाइंट ने कह दिया तो इट मीन्स के इट्स अ सक्सेस. कभी भी ऐसा, अगर कभी ऐसा हो कि वो कि हाँ मैं तो बिल्कुल ही, मेरा फियर खत्म हो गया, ये बड़ा रेयर केस होता है, लेकिन इट टेक्स टाइम. ठीक है. इसमें हायरार्की होती है, इसको आपने स्टेप बाय स्टेप करना होता है. एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, मे बी आपको काफी दफा एक्सपोजर टेक्निक उसके ऊपर करानी पड़ेगी. ठीक है. ऑलराइट. जब तक क्लाइंट कंफर्टेबल नहीं होता, यू हैव टू कीप ऑन डूइंग इट. ठीक है. और आप उनसे रेटिंग भी लेते हैं कि जब आपने पिक्चर को देखा तब कितनी हो गई एंजाइटी, जब आपने उसके बारे में सोचा तब कितनी हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स करवाया, फिर अगले स्टेप पे गए, अब कितनी एंजाइटी हो रही है. मेक श्योर कि आप उसको रेटिंग भी करवा रहे हैं. और कितनी देर बाद करवानी है, दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ एंजाइटी द क्लाइंट इज
फेसिंग। अच्छा, अब रिलैक्सेशन टेक्निक में जैसे मैंने बताया, आप उनसे डीप ब्रीदिंग करवाएं, आप उनसे माइंडफुलनेस करवाएं, ग्राउंडिंग टेक्निक्स करवाएं, उनके साथ बैठे उनको समझाएं कि वी आर विद यू, यू आर नॉट अलोन, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ, ट्रस्ट मी। उनका नर्वस सिस्टम को थोड़ा काम डाउन हमने करना होता है, और उनको बताना होता है कि इस वक्त स्केप इज नॉट द सोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि अगर आपने स्केप किया तो आपका सिर्फ और सिर्फ फियर बढ़ेगा। वी आर हेयर टू वर्क ऑन दैट फियर, क्योंकि फियर एक ऐसा इमोशन है जो हमारे, अगर वो हमारे ऊपर हावी हो गया, फिर हम उसको कभी भी उससे हम जान नहीं छुड़ा सकेंगे। वी आर नाउ हेयर टू गेट रिड ऑफ दैट फियर। ठीक है। अच्छा, अगर हम साथ ही में फ्लडिंग का भी थोड़ा सा आपको बता दूं, फ्लडिंग में फर्क ये होता है कि फ्लडिंग बहुत इंटेंस मेथड होती है। इसमें उनको ये कुछ क्लाइंट्स होते हैं, रेयर होते हैं, बट देयर आर सम क्लाइंट्स हु प्रेफर कि आप एकदम से जो है ना मेरा फियर खत्म करें, ग्रेजुअली नहीं मैंने करवाना, मुझे ग्रेजुअली से ज्यादा एंजाइटी होगी, ज्यादा घबराहट होगी, तो आई वांट कि इसको डायरेक्टली किया जाए। ठीक है, ये कभी कभार ओवरवेलमिंग भी हो जाता है, कुछ लोग इसकी वजह से बड़ा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, बट दैट इंटायरली डिपेंड्स ऑन हाउ वेल यू आर स्किल्ड इनफ टू डू इट, और क्लाइंट की क्या कंफर्टेबिलिटी। अगर कोई कहता है कि मुझे फियर है स्नेक का, या मुझे कैट का या डॉग का, तो व्हाट वी डू, एक रूम में उनको कैट के साथ रख दिया जाता है, डायरेक्टली फ्लडिंग। ठीक है, जिसमें कोई पहले बात नहीं होगी, कोई पिक्चर्स नहीं दिखाई देंगे, कुछ भी नहीं होगा, डायरेक्टली उनको उसके सामने रखा जाएगा। जब तक उसकी एंजाइटी खत्म नहीं होगी, द पर्सन विल बी इन दैट रूम, और उसके साथ थेरेपिस्ट भी होता है। ठीक है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता कहा जाता है कि अब आप कैट के पास जाके उनको में भी हाथ लगा लें। कुछ लोग होते हैं दे आर मोर कंफर्टेबल लाइक दैट कि आप जो भी चीजें ना हमारे सामने लें, बट दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि क्लाइंट जो है ना, क्लाइंट किस चीज के ऊपर कंफर्टेबल। ठीक है, एनी क्वेश्चन सो फार? All good regarding this exposure therapy? Is relaxation included in flooding? होती है बिल्कुल, लेकिन वो इतनी मेजर नहीं होती जितनी ग्रेजुअल एक्सपोजर में होती है। ग्रेजुअल एक्सपोजर में हम रिलैक्सेशन करवाते हैं 15 मिनट, 10 मिनट की, उनके साथ उनको थेरेपी डीप ब्रीदिंग करवाते रहते हैं। लेकिन फ्लडिंग में वी जस्ट आस्क देम कि आप स्लोली ब्रीदिंग करें और स्नेक को या कैट को देखते रहें। आप माइंडफुलनेस करें, आप ग्राउंडिंग टेक्निक करें, आप अपने इर्द गिर्द भी देखें क्या हो रहा है, सांस भी लेते रहें आहिस्ता आहिस्ता, और कैट को भी देखते रहें। लेकिन वो कैट वहां से हटेगा नहीं। हम ग्रेजुअल एक्सपोजर में उस फियर को साइड पे रख के फिर हम रिलैक्सेशन टेक्निक करवाते हैं। फ्लडिंग में जो फियर होता है या जिस चीज का आपको फियर होता है स्टिमुलस, वो आपके सामने ही रहता है, वो हटता नहीं है वहां से। ठीक है। अच्छा, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं? अगर फोबिया किसी ऐसी लोकेशन का हो जहां पर प्रीवियस कोई बैड एक्सपीरियंस हो लेकिन कोई एक्सीडेंट हुआ हो, तो हम वहां पर ना जाए, तो अब ड्यूरिंग द सेशन पेशेंट को किस को से कहेंगे कि वहां जाएं, इमेजिन तो करवा देते, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अच्छा, अब ये जो इमेजिनेशन की बात है ना, ये एक्सपोजर टेक्निक नहीं है। इमेजिनेशन में ये गाइडेड इमेजरी आ गई है, दैट्स एंटायरली डिफरेंट थिंग। आपने उनसे इमेजिन नहीं करवाना। एक्सपोजर थेरेपी में एक चीज सामने लेकर आनी है आपने। अगर किसी सिचुएशन का उनको फियर है, ट्रॉमा है, ये वही ट्रॉमा की बात ही आ गई कि आपको अगर गाइडेड इमेजरी करानी है, तो उनको फिर ये कहा जाता है कि आप इमेजिन करें कि आप वहां पर हैं। जब आपने अपने आप को इमेजिन किया ऑन दैट प्लेस, व्हाट्स हैपनिंग, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड, क्या सोचे आ रही है? मुझे डर लग रहा है, कुछ हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको, कोई आके मुझे मार देगा या कोई मुझे पकड़ लेगा? कोई भी ऐसा नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, ये बेसिकली गाइडेड इमेजरी टेक्निक की तरफ हम जा रहे हैं। एक्सपोजर टेक्निक में जो भी फियर होता है वो सामने एक्सपोज किया जाता है, तो वो एक डिफरेंट हमारी उसमें आ जाएगी, वो गाइडेड इमेजरी है। ठीक है अक्सर मैम, अगर फोबिया, अच्छा ये हो गया लोकेशन का। ठीक है, चलो, anyone else, anything else that you would like to ask? All right. ठीक है, जैसे मैंने बताया एक्सपोजर टेक्निक का गोल क्या है उसको भी समझ लें। द गोल इज नॉट टू एलिमिनेट द फियर कंप्लीटली, वो कभी भी एकदम से नहीं खत्म होगा। सिर्फ क्लाइंट को ये दिखाना होता है, बिहेवियर एक्सपेरिमेंट ही आ गया, ये दिखाना होता है कि योर ब्रेन कैन हैंडल इट।
क्योंकि उनको ये लग रहा होता है कि आई कैन नॉट हैंडल इट, आई कैन नॉट डू इट, मेरे से नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकता। तो एक्सपोजर थेरेपी आपको सिखाती है कि योर ब्रेन कैन डू इट। इसमें कुछ ऐसे डरने वाली बात नहीं है। वी आर विद यू एंड यू कैन फेस द फियर। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाँ जी, नाउ वी हैव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी। अच्छा, ये भी बहुत मजे की होती है, ये भी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स करवाते हैं। और इसमें बेसिकली जो गोल होता है वो ये होता है कि हमने प्रॉब्लम को तो पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन उसके व्हाट्स नेक्स्ट आफ्टर आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, द नेक्स्ट इज कमिंग टू द सोल्यूशन। ठीक है, हम सोल्यूशन ओरिएंटेड बात करते हैं। ये भी एज यूजुअल स्टेप्स में ही है क्योंकि स्ट्रक्चर्ड है। अच्छी बात है ये, आई थिंक, आई बिलीव इट्स अ गुड थिंग कि सीबीटी में हर टेक्निक को उन्होंने स्टेप वाइज किया है, सो दैट इट बड़ा ये आपको क्लियर हो जाता है थेरेपिस्ट के लिए भी और क्लाइंट को समझाने के लिए भी। आप सिंपल उनके साथ ये शेयर कर दे और फिर उनको बता दें कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू अबाउट। अच्छा, इसमें सबसे पहले वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। ठीक है, और वो बड़ा क्लियरली आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं या करवाते हैं कि आपके हिसाब से क्या प्रॉब्लम। ठीक है, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा चैलेंज, कोई ऐसी चीज जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही या आपकी एंजाइटी को बढ़ा रही है या आपको प्रॉब्लमेटिक लग रही है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एक लिखी हुई, आई एम जस्ट बैड एट स्कूल। वो एक बच्चा आता है, वो ये कहते हैं कि स्कूल में मुझे बड़ा प्रॉब्लम होता है, मेरी पढ़ाई का बड़ा इशू है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया प्रॉब्लम। ठीक है, देन व्हाट वी डू इज वी जनरेट आइडियाज फॉर व्हाट, टू सॉल्व द इशू। कि इस इश्यू को अब सॉल्व कैसे किया जाए, आपके हिसाब से क्या क्या आइडियाज हो सकते हैं। पहले हमेशा उनसे आपने पूछना है कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर योर आइडियाज। अगर यही सेम सिचुएशन किसी और के साथ हो तो उसको क्या आइडियाज आप देंगे। ठीक है, इट कुड बी एनीथिंग कि मैं आई वुड मेक अ स्टडी प्लान, मैं स्टडी प्लान बना लूंगा। ठीक है, मैं अपनी फ्रेंड के साथ पढ़ाई, क्या कहते हैं उसको, जो आप दोस्तों के साथ पढ़ाई करते हैं, ग्रुप स्टडी, आई विल डू ग्रुप स्टडी। ठीक है, आई विल मेक श्योर कि जब भी कोई टेस्ट हो तो उससे पहले मैं डीप ब्रीदिंग करूँ, मैं अपने आप को रिलैक्स करूँ, मैं नोट्स बनाऊँ। ठीक है, या जो टफ क्वेश्चन है उनको मैं बाद में करूँगा और जो आसान है उनको पहले करूँगा। जनरेट आइडियाज, मल्टीपल आइडियाज आपने जनरेट करवाने। अच्छा, जब आइडियाज जनरेट हो गए, देन वी एक्चुअली हैव टू गो थ्रू ईच आइडिया टू एवेलुएट देम। ठीक है, जैसे वही बात है, आपने हर आइडिया का प्रोज एंड कॉन्स बताना होता है। बताना आपने नहीं, आपने उनसे पूछवाना है। कोशिश ये करनी है कि ये जो स्ट्रेटेजीज हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज हैं, ये आपने उनसे करवानी होती है, खुद नहीं आपने करना। क्योंकि उनके पास आइडियाज होते हैं, बस वो दे जस्ट नीड समवन टू पुश देम। ठीक है, उनसे आपने ये करवाना है कि आपके हिसाब से अगर आप ग्रुप स्टडी करते हैं तो इसमें क्या फायदा है। फायदा ये है कि आई फील सपोर्टिव। ठीक है, मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है तो मैं आई फील गुड कि मेरे फ्रेंड्स भी मेरे साथ हैं। ठीक है, मैं अपने टीचर से इसके बारे में बात, अगर सपोज उनका एक आइडिया ये आया कि आई टॉक टू माई टीचर अबाउट इट, तो प्रोज एंड कॉन्स की हम उनसे पूछेंगे कि इसका क्या फायदा है, इसका क्या नुकसान है। ठीक है, दे माइट टेल यू कि फायदा ये है कि मेरी टीचर को पता चल जाएगा तो शायद वो मुझे मैनेज अच्छे से कर लेंगे, लेकिन नुकसान इसका ये है कि मुझे डर लगता है अपनी टीचर से, तो शायद मैं ये ना कर पाऊँ। ठीक है, यू गॉट टू नो कि ये वाला आइडिया में कौन निकल आया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो आइडिया ये देता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये सब्जेक्ट ही क्विट कर दूँ। ठीक है, इसके क्या फायदे हैं, क्या आपने सोचा हुआ है कि कोई और सब्जेक्ट आपने लेना है, और इसका क्या नुकसान है। ठीक है, नुकसान ये है कि अगर मैं ये क्विट कर दूंगा तो और कोई मेरा सब्जेक्ट है ही नहीं जो मैं पढ़ना चाहूँ, तो हमें उसका भी आइडिया हो गया। ठीक है, यू बेसिकली हैव टू एवेल्युएट ईच एंड एवरी आइडिया दैट यू जनरेट। अच्छा, अब एवेल्युएशन हो गई, प्रोज एंड कॉन्स का पता लग गया, नाउ यू हैव टू डिसाइड ऑन अ सोल्यूशन। अब you have to choose a plan. What's the best option? One or two ideas that I can actually put it into action. ठीक है, and you have to give it a try. कि चलो ये वाला आइडिया मुझे आया, इसको ट्राई करके देखो। ठीक है, and then finally you have to see the outcome कि क्या वो आइडिया काम किया कि नहीं किया। Did it help? क्या उससे मेरी पढ़ाई को फर्क पड़ा, क्या मुझे उसके ऊपर और काम करने की जरूरत है। ठीक है, हो सकता है कि कोई ऐसा आइडिया हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, जो नहीं चले, जो नहीं काम करे। ठीक है, मैं बहुत नर्वस हो गया था जब मैंने ये किया। ठीक है, मेरे से ये चीज नहीं हो पा रही है, तो फिर हम उसको दोबारा से, जैसे यू कैन सी, डिड इट वर्क, इफ इट डिड नॉट वर्क देन एवेलुएट द आइडियाज अगेन।
जनरेट आइडियाज हो गए हैं, हमने सिर्फ इवेलुएशन फिर से करवानी है, जो जो आइडियाज हमने जनरेट करवाए दोबारा से प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर बात की जाएगी, ठीक है। और फिर जब आपको पता चल जाता है कि कौन से आइडियाज फायदे वाले हैं और कौन से नुकसान वाले हैं, तो जो फायदे वाले हैं उन्हीं के ऊपर बार बार एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेसिस हो, ठीक है। और हो सकता है कि कभी कभार कोई सोल्यूशन इट डज नॉट वर्क राइट अवे, बट देन अगेन इट्स ऑलवेज अबाउट प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। हमें उनकी परफेक्शन नहीं देखनी होती, हमने उनको ये चीज रियलाइज करानी थी कि यू आर एटलीस्ट डूइंग इट, you are building confidence, you are learning what works best for you, what is the best thing that you can do to basically improve that problem. जो हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है उसी प्रॉब्लम को लेके हमने आगे फर्दर चलना होता, राइट। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस? जी, कोई एग्जांपल? Ma'am, we have to ask them to pick a solution. We have to basically decide on a solution ना, जो आइडियाज हमने निकाले हैं ना वही solutions है, और फिर उसमें से जब हमने प्रोज एंड कॉन्स देख लिए फिर वी कैन आइडेंटिफाई। अगर आप उनसे पूछना चाहते हैं तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। अगर एज अ साइकोलॉजिस्ट अगर आपको लग रहा है कि ये वाला एक्चुअली में ज्यादा अच्छा काम करेगा तो यू गो फॉर दैट। ये ना हो कि वो अपनी तरफ से सोल्यूशन बता रहा हो और कोई भी काम ना कर रहा। और अब हमने आइडेंटिफाई ये करना है कि जो उसके सॉल्यूशंस है क्या वो प्रैक्टिकल भी हैं कि नहीं। दैट एज अ थेरेपिस्ट इट्स आवर रोल नाउ। लेकिन जो आइडियाज जनरेट करवाने हैं, जैसे हो सकता है 4 आइडिया वो बता देते, 2 आइडियाज आप ही उसमें से बता सकते हैं, ठीक है। बट आपने कोशिश ये करनी है कि द एंटायर सेशन, द एंटायर टेक्निक इज क्लाइंट बेस्ड। आपने 10 के 10 आइडियाज बता दिए, क्लाइंट ने कुछ नहीं किया, तो दैट विल नॉट वर्क। कुछ उनसे निकलवाए आइडियाज और कुछ खुद भी उनको आप एज अ थेरेपिस्ट, एज अ प्रोफेशनल उनको सजेशंस दें। ऑलराइट, एनी क्वेश्चंस इस चीज के बारे में? अच्छा, सो दिस वाज बेसिकली द एंटायर, आप समझ लो, टेक्निक्स जो सीबीटी में हम यूज करते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी विल बी टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स। अच्छा, उसमें मैं बता दूं बहुत ज्यादा रेपिटेशंस होंगी, बहुत ज्यादा टेक्निक्स जिनके बारे में हमने बात कर ली है वही दोबारा दोबारा होगी, बट द एंटायर गोल ऑफ डूइंग दिस एक्सरसाइज, नॉट एक्सरसाइज, द एंटायर गोल ऑफ टीचिंग यू दिस गाइस these things is कि आपको पता चलता है कि अगर आपके पास पैनिक डिसऑर्डर का बंदा आ रहा है ना, तो आपके पास 10 टेक्निक्स लिस्ट डाउन होनी चाहिए कि यही टेक्निक्स मैं इसके ऊपर करा सकती हूँ। कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो सब पे नहीं चलती, जैसे एक्सपोजर थेरेपी अगर आपने पीटीएसडी के बंदे पे करानी तो वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। यू कैन नॉट, आप उसको किस तरह से एक्सपोज करवाएंगे टू समथिंग दैट इज ऑलरेडी हैपेंड, ठीक है। वो गाइडेड इमेजरी के थ्रू होगा, वो एक्सपोजर थेरेपी के थ्रू या फ्लडिंग के थ्रू नहीं होगा। तो द एंटायर गोल इज कि आपको जितने भी मैंने अभी तक टेक्निक्स बताई हैं वो आप थोड़ा सा उसको हम स्पेसिफाई कर लें। अच्छा, अब टाइम, वी आर डन विद द सेशन आज की क्लास के, क्योंकि टाइम हमारा पूरा हो गया है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्लास में मैंने 2 चीजें करवानी है। हो सकता है, आई एम टेलिंग यू दिस थिंग बिफोर, कि शायद हम 30 मिनट उसको ऊपर ले जाए, बिकॉज आई हैव टू वाइंड इट अप। इसमें हम बात करेंगे सीबीटी फॉर स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स, और मैंने आप लोगों के साथ थोड़ी सी जो है ना वो करवानी है, ग्राउंडिंग टेक्निक करवानी है, पीएमआर करवाना है, डीप ब्रीथिंग करवानी है, ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि इसको किस तरह से करते हैं। ये 2 चीजें अब बस रह गई हैं, एक सीबीटी फॉर स्पेसिफिक डिसऑर्डर, दूसरी चीज माइंडफुलनेस या ग्राउंडिंग टेक्निक या पीएमआर, वो हम देख लेंगे। अच्छा, अब नार्सिस्टिक अब्यूज की, नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी के बारे में किसी ने मुझे कहा था, और दूसरा कौन सा था? बाइपोलर पर्सनैलिटी के बारे में। शायद इधर हम फिर से चेक कर लूं, नार्सिसिस्टिक एंड बॉर्डरलाइन, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों के बारे में भी मैं फिर इसमें इसी स्लाइड्स में ऐड कर दूंगी, कि मैंने ऐड नहीं किया हुआ, बट आई विल डू दैट। एनी क्वेश्चन सो फार? अच्छा, इस सेशन में होमवर्क भी कोई नहीं आप लोगों को मिल रहा, क्योंकि जो लास्ट क्लास होगी उसी में ही फिर करेंगे। अच्छा, अब आई वांट फॉर द लास्ट क्लास, आई वांट ईच वन ऑफ यू टू कम अप विद क्वेश्चंस एज वेल। कोई चीज अभी तक जो आपको नहीं समझ आई, गो थ्रू द स्लाइड्स अगेन, द रिकॉर्डिंग्स अगेन, द होमवर्क्स अगेन, एंड सी कोई चीज जो नहीं समझ आई, ताकि हम उसको लास्ट क्लास में ले लें।
उसको 30 मिनट्स इसको हम ऊपर करेंगे, ठीक है, जो लास्ट क्लास होगी, ताकि जो भी चीजें रह गई क्वेश्चंस कवर अप करने वाले उसको हम कर दें, ठीक है। एनी क्वेश्चन, एनी सजेशन, एनीवन वांट्स टू से समथिंग? Fabia is saying all clear. Yes, perfect. ठीक है, anyone wants to say something or we should just wind it up? आज सारे म्यूट हुए, मैं कोई बात नहीं कर रहा, खैरियत है? आज लेजी सैटरडे मुझे लग रहा है आप लोगों का, ये मौसम की वजह से सारे। कैन यू ऐड बाइपोलर एज वेल? ठीक है, बाइपोलर भी ऐड कर। नार्सिसिस्टिक, बाइपोलर एंड बीपी। बस आई विल ट्राई कि टाइमली ये चीजें हो जाए। वही बात है, जो टेक्निक्स रिपीट हो गई उसको मैं रिपीट नहीं करूंगी जब हम स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स की बात करेंगे, बट आई हैव एडेड अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ टेक्निक्स दैट यू कैन यूज। तो फिर वो आपके पास वो सेफ रहेगी कि चलो जब भी कोई इस तरह का क्लाइंट आएगा तो यू विल नो जो न्यू टेक्निक्स होंगी, फिर वो आई विल एक्सप्लेन दैट। All right, perfect. I think on that note, we should end the session now. Aksa is saying very appreciative and interesting session. Thank you so much. The practical part was very good. Thank you, Aksa. Means a lot. Thank you so much. All right, then. Thank you, everyone. Take care of yourself. I will see you guys in next class, inshallah. All right. Thank you, everyone. Take care. Allah Hafiz.